हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीके हब ट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020-21 फॉर द सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्लास 12th। एंड एज ऑल यू नो दैट द ज्योग्राफी कोड इज़ 029, मैक्सिमम मार्क्स इज़ 70 एंड द टाइम लिमिट इज़ 3 आवर। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस बार सीबीएसई हैज़ चेंज्ड द पैटर्न ऑफ ज्योग्राफी फॉर द 12th क्लास। तो क्या क्या चेंजेस हैं? The first one, question paper is divided into three sections A, B, C. The first one, section A, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 1 से लेके 15 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मीन्स आपको क्वेश्चन दिया होगा, यू हैव टू, उसके ऑप्शन भी होंगे एंड यू हैव टू पिक्ड राइट वन, राइट। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 14, ठीक है। सो 15 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट एनी 14। Write the correct answer in your answer sheet, right? So this one is the first section. Section B, question number 16 17 are short source based and graph based question, means एक short source based question में ये comprehension question होगा, उसके questions होंगे MCQ form में, you have to pick the right one. And second one is the graph based questions and carrying 3 marks. Answer of any 3 questions out of 4 marks, ठीक है। तो आंसर एनी 3 questions out of 4 marks. So 4 की जगह पे आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 3. Each of these sub questions carry 1 mark, right? Question number C, question number 18 to 22 are short answer questions carrying 3 marks, और word limit वही 60 to 80 words. In section C, question number again section C भी दो पार्ट में है. section C 3 marks के लिए, second section C that is 23 to 27 are long answer question carrying 5 marks and word limit should be 120 to 150 words. And question number 28 29 related to the MABUC from India portion and the world portion, and both of them carry 5 marks each. Now move toward the questions. So the first one, attempt any 14 question related to the MCQ objective based question. The question number 1, fill in the blanks, dash and dash density should be found out in order to get a better insight into human land ratio. So your answer will be agricultural and physiological density. Agricultural and physiological density are the right one. Then say question number 2, arrange the following approaches in a sequence ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, मीन्स कैसे डेवलपमेंट हुई है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया, उसमें हमने कई तरह के अप्रोचेस स्टडी किए हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल अप्रोच, एरियल डिफरेंशिएशन, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। सो मीन्स सबसे पहले कौन सी आई? रीजनल अप्रोच आई, देन फॉलोड बाय द aerial differentiation approach, then again followed by the spatial organization, and last one is the humanistic approach. Student, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, which is the modern approach, that is the post modernism in geography, right? Then third one, पाना, पारा, पाली, नागला एंड धानी आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट। तो ये सेटलमेंट चैप्टर से है एंड द राइट आंसर विल बी द हेमलेटेड सेटलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाना, पारा, पाली, नागला एंड धानी आर रिलेटेड टू हेमलेटेड सेटलमेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, the next one is question number 4. Examine which of the following problems are generally confronted by the villages of South Asia. So your answer is, because South Asia is, that is the Indian subcontinent, right? This one is the South Asia. So the main problem is here, that is occurrence of floods and the drought. So this is the main problem. The question number 5, which of the following programs sponsored by central government aiming at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation? The first one, अरबरी पानी की संसद, ये राजस्थान में लॉन्च हुई। हरियाली, दिस इज द ओवरऑल इंडिया में लॉन्च हुई। नीरू मीरू, दैट इज इन द आंध्र प्रदेश, एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन, दैट इज रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम इन द गुजरात रीजन। तो बेटा द फर्स्ट, अरबरी पानी की संसद, नीरू मीरू एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम। हियर द एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम, सो दैट इज द हरियाली इज द राइट वन। देन क्वेश्चन नंबर 6, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू। सो बेटा पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया है, द ऑप्शन दैट इज द ऑप्शन ए इज राइट, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्कर्स, राइट। उसका था क्वेश्चन नंबर 7, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज डेवलप्ड बाय, तो उसको हमने पढ़ा था, फादर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज डॉक्टर महबूबुल हक। सो दिस वन इज द राइट आंसर, डॉक्टर महबूबुल हक। उसका था क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is the best indicator या best describe development? So the right answer is, that is the C, a positive change in quality. So this one is the right is, which one of the following is not a plantation crop? Easy question है, that is the right answer is wheat, because coffee, sugar cane
and rubber, these are the plantation crop. Only the wheat is the rabi season crop, and this is not the plantation crop. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉलम 2 अगेंस्ट द कॉलम 1। तो बेटा यहाँ पे सम रिलेटेड फील्ड्स हैं एंड मिनरल्स हैं। रिलेटेड फील्ड्स कौन है? चिकमंगलुरु, सिंहभूम, दुर्ग, कोरापुट। एंड मिनरल्स कौन से हैं? आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज एंड कॉपर। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो बॉक्साइट के लिए द कोरापुट माइन दैट इज इन उड़ीसा, दैट इज़ वेरी वेरी फेमस। सो यू कैन फाइंड आउट फोर्थ का जो 2 है, ठीक है। सो दैट इज द कोरापुट इज़ वेरी फेमस फॉर द, so here Koraput is very famous for the bauxite, and Koraput is in the Odisha. So Odisha is the largest producer of the bauxite as well as the manganese. तो here जिसमें मतलब 4 का 2 आएगा, तो 4 का 2 सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन में है, that is the option number A. So option number A is the right. So Chikmagaluru, right, that is the related to the third, that is manganese, clear, and Singhbhum, so 4 का है, that is the 2. सो कोरापुट दैट इज बॉक्साइट, सॉरी यहाँ पे देखो 3 का 1 है, 3 मीन्स दुर्ग, दुर्ग का राइट आंसर इज द आयरन ओर। देन 4th का 2 मीन्स कोरापुट का क्या आ गया? बॉक्साइट आ गया। 1 का 3 चिकमंगलूर का मैंगनीज, एंड 2 का 4 मीन्स सिंहभूम का दैट इज कॉपर। सो दिस वन इज द ए इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following program has been launched by the present union government for cleaning the river Ganga? तो डी स्टूडेंट 1995 में ड्यूरिंग द राजीव गांधी 90s पीरियड में राजीव गांधी गवर्नमेंट के थ्रू गंगा एक्शन प्लान आया था। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दैट इज एनडीए गवर्नमेंट, सो दैट लॉन्च द नमामि गंगे प्रोग्राम। सो ऑप्शन बी इज द राइट। द आउटसोर्सिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग? केपीओ, केपीओ की फुल फॉर्म है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए है दैट इज द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। केपीओ यूज होता है इन्फॉर्मेशन के लिए। relate to the most important factor responsible for high density of population found in the Katanga Zambia plateau located in the Africa. So the right answer is availability of copper in abundance, क्योंकि अफ्रीका का रीजन जो है ये जाम्बिया रीजन दैट इज वेरी फेमस फॉर द कॉपर प्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, if a country is having large population of young population, it would mean, so it would means that option A is right, high birth rate and the population is youthful. And question number 15, age and skill selective migration from rural areas has not adversely affected adversely to which of the following demographic tribute? So right answer is balance in age and sex composition. So this is the right answer, that is D, and by this we have complete section number A. Now move toward the section B, that is source based question. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। और अभी सीबीएसई ने जो चेंज किया है ये यही चेंज किया है। 2 आपको क्वेश्चन होंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से, एक पैराग्राफ बेस में होगा और सेकंड वन इज टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में। 3 मार्क्स के होंगे दोनों, राइट। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट यहाँ पे यू हैव टू रीड आउट दिस पैराग्राफ। ये जैसे जो है दिस इज पैराग्राफ रिलेटेड टू द पोल्यूशन, क्लियर। सो यहाँ पे जो भी आफ्टर द रीडिंग आउट द पैराग्राफ फ्यू क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, तो 4 क्वेश्चन दिए होंगे, यू हैव टू अटेम्प्टेड एनी 3, लिखा भी हुआ है यहाँ पे आंसर एनी 3 क्वेश्चन। सो विच टाइप ऑफ, यहाँ पे बेटा इसको रीड आउट करने के बाद यू आर एबल टू गिव द आंसर। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का वाटर पोल्यूशन की बात हुई है। विच प्रोसेस लेड टू कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर? दैट इज़ द लीचिंग, क्लियर। दैट इज़ द लेटराइट सॉइल की बहुत बड़ी फीचर है ये। लीचिंग मतलब जो फर्टाइल न्यूट्रेंट है वो फ्लो कर जाते हैं विद द फ्लो ऑफ द वाटर, ठीक है। जैसे सी की जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ द ऑप्शन 4, एनहांसमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। डी का राइट आंसर रहेगा दैट इज़ द 1, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, क्लियर। उसके बाद है दिस इज़ द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। So this is all we know that कि this is the question related to the demographic transition theory, right? So stage 1 है, stage 2 है, stage 3 है, तो very easy। तो इसमें A का right answer रहेगा that is option 1, birth rate minus death rate, natural increase कैसे होती है birth rate minus death rate। question number 2 है why what does the transition from high fluctuating stage to low fluctuating stage indicate? तो B का right answer रहेगा that is option 2, shift from rural agrarian economy to urban industrial economy। same case with the सी का राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, एंड 4 का राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन 2। सेकंड स्टेज की बात हुई है, ठीक है। डेमोग्राफिक स्टेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहाँ पे होता है? दैट इज इन द सेकंड स्टेज। उसके बाद ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्वेश्चन है, सेम केस, ठीक है। सो कोई डिफिकल्ट नहीं है इस बार का ज्योग्राफी का पेपर। इफ़ यू फॉलो द अप्रोच पॉजिटिवली देन यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। एंड माई मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट यू
you have to get good marks in geography exam, near about above 90 in the geography subject, right? So justify the high demand of water irrigation in India. This is related to the section C, 3 marks question. So you have to just discuss all these types of the question, dear student. Note one thing, you have to answer all the question in points, point number 1, point number 2, point number 3. Do not go with the approach that is paragraph writing, right? So justify the high demand of water irrigation of water, because people wants to produce more and more crops, right? Second one is growth in the population, ठीक है, यूज़ ऑफ HYB सीड्स, इस वजह से इरीगेशन की डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसी में और में क्वेश्चन आया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंसिडर्ड एज लो कॉस्ट। यस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इनिशियल कॉस्ट इज रादर हाई, बट आफ्टर दैट द कॉस्ट इज वेरी लो। इको फ्रेंडली नेचर, इट डज नॉट pollute the environment, so you have to justify this statement on this behalf. Then question number 19, on what basis डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो रूरल एंड अर्बन सबसे पहले ऑक्यूपेशन है, ठीक है, देन सेकंड वन लिविंग स्टैंडर्ड है, फैसिलिटीज़ है। सो दिस हाउ दिस इज द वे वी कैन कैटेगराइज द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ज्योग्राफी इन द अर्ली 20th सेंचुरी हैज़ बिकम मोर इंटेग्रेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले आज दिन तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पेपर में। सो बेटा इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन इन द 20th century ज्योग्राफी इज बिकम अ इंटेग्रेटिव एंड interdisciplinary subject with other subject like economics, like soil geography, like political geography, like historical geography, like the resource geography, like industrial geography, like transport geography. So this is the interdisciplinary and integrative approach, and geography in the 20th century is belong to all the subject. Why? Because of conservation of the earth and control of the environmental pollution, that's why, ठीक है। So this is next one, question number 21, some countries of the world have high human development index. Try to find out the reason why the human development index is very high in this region in country, because of high that is all we know that expectancy, life expectancy is very high, good health condition, good education system is there, so due to that, right? Then uske baad hai question number 22, growth of service sector in modern economies plays a vital role. Yes beta, in this century, in the 21st century, the growth of the service sector is playing a very crucial role with the help of quaternary activities, quinary activities, ठीक है। तो you have to explain these 2 point, quaternary and quinary, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग है और एक दैट इज टीचिंग द स्टूडेंट, दैट इज स्प्रेडिंग द नॉलेज। उसका था क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में आया है डायरेक्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, ऑल वी नो दैट व्हाई द माइग्रेशन अकर, बिकॉज ऑफ द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, एंड व्हाई दैट हैपेंड, बिकॉज ऑफ गुड फैसिलिटी। तो बेटा जैसे ही गुड फैसिलिटी के लिए लोग मूव करेंगे, देयर विल बी द प्रेशर ओवर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द अर्बन, there is the growth of the slum, high crowd, congestion, right, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस, ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे अकड़ होंगी, बट यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। सो कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है, वेजेस विल बी लो, क्योंकि जब हाई लेबर आपको मिलेगी तो बेसिस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, दैन लिविंग स्टैंडर्ड विल बी लो, कंपटीशन इन द जॉब्स। सो ये सारे पॉइंट यू कैन बी एड इन द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिटिकली एनालाइज द सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट आर बीइंग एक्सपीरियंस बाय द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ITDP, इंटेग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बेटा उसके सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, you do not have to explain ITDP whole, but in introduction you can mention that this program comes under the hilly tribal area development program, during the 4th 5-year plan this can be launched. So what are the social economical consequences, benefits क्या रहे, increase in the literacy rate, right, permanent agriculture is there, the upliftment of the rural people is there, transport facilities are there, right, cottage industry that has been established with the help of ITDP, so you have to explain all these points, right। इसी में और में क्वेश्चन दिया हुआ है, एनालाइज द प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो सस्टेनेबिलिटी दिया हुआ है, कैसे प्रमोट करनी है। द फर्स्ट वन, नेटिव क्रॉप्स शुड बी ग्रोन, right, water intensive crops should be avoided, afforestation is there, shelter belt is there, people must be aware about the less use of the fertilizers, HYB seeds, and the irrigation. So these are the point comes under the sustainability in the promotion of Indira Gandhi Canal Command area. उसके बाद question number 25, important question is substantiate the evidence to prove the subsistence agriculture is still practicing in the different part of the globe. Yes beta, in the much part of the world this subsistence agriculture is still going on, and why? Because the people these countries are the underdeveloped country, and they do not have the much knowledge related with the developed world. So that's why these people still engage with subsistence agriculture, because they are using old equipments, old techniques, technology, and there is no use of fertilizer chemicals, and
HYV seeds and know that their cropping pattern is totally depend over the rainfall. ठीक है, so the people does not aware about the modern technique and even the government has not played sufficient programs for the upliftment and for the development of these people. That's why, right? Question number इसी में और में क्वेश्चन दिया हुआ है, highlight the feature of commercial livestock rearing. Commercial livestock rearing mean in which the main objective is to earn more and more profit with respect to commercial livestock rearing. अब commercial livestock rearing कहाँ पे होती है? नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज हैं, साउथ अमेरिका में पम्पास हैं, देन यूरोप में दैट इज़ स्टेपीज़ हैं, अफ्रीका में दैट इज़ द वेल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं. सो इन दीज रीजन कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग. सो व्हाट आर द मेन फीचर्स? ठीक है, एनालाइज द क्वेश्चन नंबर 26, एनालाइज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्री. तो 3 प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल एंड सोशो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, राइट? तो उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि अर्बन सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम, लाइक वहाँ पे पोल्यूशन हो रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ देयर, राइट? डंपिंग साइट्स आर देयर, heap of garbage is there. So all these point. ठीक है, question number 27, this one is the last theoretical question. Classify minerals into 2 groups. So which are the 2 groups? The first one is the metallic and non-metallic, and then you have to explain all these and mention any 2 feature of 3 mineral belt in India. अब 3 mineral belt कौन कौन सी है? That is the first one is नॉर्थ ईस्टर्न मेघालय वाली बेल्ट. ठीक है, देन सेकंड वन इज द छोटा नागपुर प्लेटू बेल्ट, जिसमें उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिस वन इज द छोटा नागपुर प्लेटू. एंड देन नेक्स्ट वन इज साउथ वेस्टर्न बेल्ट, जिसमें आपके महाराष्ट्र, पुणे, कर्नाटका रीजन. सो दिस वन इज द 3 मेजर बेल्ट्स ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट वन इज द मैप बक. ओके, सो मैप बक में क्या है? दैट इज द फर्स्ट वन, ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एनी 5. आपको 7 दी हुई हैं, आपने लोकेट करनी है 5. तो अ स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज अरुणाचल प्रदेश, अ स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन दैट इज गोवा, बेंगलुरु मेगा सिटी दैट इज इन कर्नाटका, मयूरभंज आयरन ओर माइन, Muirvanj iron ore mine that is in Odisha, Jamnagar oil refinery that is in the Gujarat, Katni bauxite mine that is in the Madhya Pradesh, and Neli lignite mine that is in the Tamil Nadu. So this is the very important mine, Neli lignite mine. अगर हो सकता है फाइनल एग्जाम में मैबक में ना आए, वहाँ पे वैसे ही एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चंस. उसके बाद है विजुअली इम्पेयर्ड, और उसका मैबक जो 29 क्वेश्चन है, रीजन इन अफ्रीका प्रैक्टिसिंग नोमैडिक हर्डिंग. तो इसको हम जल्दी से, साथ में हमारे पास मैबक भी दिया हुआ है इन्होंने, वर्ल्ड मैबक. तो जो ए है दैट इज़, ए में क्या फिल करेंगे? दैट इज़ सहारा रीजन. तो ए के लिए क्या है? दैट इज़ द सहारा रीजन, राइट? रीजन इन अफ्रीका प्रैक्टिसिंग नोमैडिक हर्डिंग. तो अभी भी नोमैडिक हर्डिंग अफ्रीका में हो रही है, दैट इज़ इन सहारा. ए मेगा सिटी ऑफ एशिया, तो मेगा सिटी चेक कर लेते हैं कहाँ पे, दैट इज़ ऑप्शन बी. सो दिस वन इज़ द टोक्यो एंड ए इज़ द सहारा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी. द क्वेश्चन नंबर सी इज रीजन ऑफ यूरोप प्रैक्टिसिंग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड मेगा सिटी ऑफ साउथ अमेरिका. ठीक है, तो रीजन ऑफ यूरोप का है दैट इज़ द स्टेपीज. सी इज़ स्टेपीज, हमने पहले ग्रासलैंड में डिस्कस की, दैट इज़ स्टेपीज ऑफ यूरोप. ओके, एंड डी दैट इज़ ब्राज़ील का कौन सा है? दैट इज़ साओ पोलो सिटी है. ओके, एंड द फिफ्थ वन दैट इज़, फिफ्थ का आंसर रहेगा दैट इज़ नॉर्थ कनाडा. इसका आंसर रहेगा नॉर्थ कनाडा, राइट? सो दिस इज़ द मैबक. क्या मैबक था? अभी जब हम जस्ट डिस्कस किया है. रीजन ऑफ अफ्रीका प्रैक्टिसिंग नोमैडिक हर्डिंग दैट इज़ द सहारा. राइट आंसर विल बी सहारा. मेगा सिटी ऑफ एशिया टोक्यो, जापान की वहाँ पे लोकेशन दी हुई है. मेगा सिटी रीजन यूरोप प्रैक्टिसिंग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग दैट इज़ द स्टेपीज, राइट? स्टेपीज. उसके बाद है मेगा सिटी ऑफ साउथ अमेरिका दैट इज़ साओ पोलो, ब्राज़ील में है साओ पोलो. And fifth one, region of North America practicing subsistence gathering that is North Canada. So this one is whole explanation of the CBSE sample paper that is for the year 2021 for the subject geography class 12th. So total marks 70 हैं, 3 hours की टाइमिंग है. अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करो सेट की. कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन, यू कैन पुट योर क्वेश्चन एंड डाउट्स इन कमेंट बॉक्स. एंड यू हैव आल्सो check out all the videos related to the 10th and 12th portions. So hope for the best and best of luck for your exams. Thank you very much.